We will start with how the HR will change. See, the role and the management of HRM has come a long way from where it was few years back to now, where human resource are finally considered to be the assets, right? Role of human resource will change and has changed. फ्यूचर में अगले 10 साल में ये और ज्यादा चेंज करने की संभावना है. किस तरीके से? You write down the points, write down the heading how the HR has or will change, और फिर हम बात करेंगे कि स्ट्रैटेजिक HR में कैसे उससे डील करना है. The first point, फटाफट लिखते जाइए. There will be a change in value systems. Ajay, name is Ajay. What's your name? Amitesh, sorry. Why are you so irregular in class? ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कोर्स. Try to be regular, otherwise things. एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा रहता है ना. एब्सेंट करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए लिखिए. There will be a change in value system coupled with rising educational level. मैम वैल्यू सिस्टम. Rising educational level. There will be a change in value system coupled with rising educational level. Second, great skepticism. Great, skepticism, skepticism concerning large organizations and less reverence, REVERE. Ma'am, repeat once. Great skepticism concerning large organization and less reverence, REVERENCE, less reverence for authority figure will be common. For authority figure will be common. Next, unquestioning acceptance. Unquestioning acceptance of rules and regulations unquestioning acceptance of rules and regulations will be less likely. Less likely. Next, new workforce will comprise better educated and self-conscious workers. Better educated and self-conscious workers who will ask for मैम कंसिस्ट. better education and self-conscious workers who will ask for higher degree of participation. मैम नेक्स्ट पॉइंट है इसी में. हाँ बोलो. मैम नेक्स्ट पॉइंट है इसी में. उसी में who will ask for greater degree या higher degree of participation for self fulfillment. For self fulfillment. Proportion of professional and technical employees. Next point. Yeah.
Participation for self-fulfillment. Write down next point. Proportion of professional and technical employees will increase in comparison to blue collar workers. Blue collar workers. Next, larger women participation in managerial posts also. Larger women participation in managerial posts also. Last, HR will be treated as, HR का मतलब human resources, ठीक है? Human resources will be treated as assets. Will be treated as assets which will appear in balance sheet of organization. Which will appear in balance sheet of organization. देखिए HR चेंज हुआ, यानी ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज चेंज हुई. क्यों चेंज हुई? क्योंकि बिजनेस का पैटर्न चेंज हुआ, राइट? आपको ये विटनेस करने को मिलता है. इमेजिन somebody 20 साल पहले आज से कितने बीकॉम प्रोफेशनल्स निकलते थे या कॉमर्स निकलते थे, तो क्या जॉब की इतनी दिक्कत होती थी जितनी अब है? somebody who was even बैंक पीओ बनना बहुत आसान था. आज कुछ सालों पहले लोग बीए करते रहते थे एंड देन साइड में वो बैंक का फॉर्म भर दिए और बैंक के पीओ बन गए. जो थोड़ी सी तैयारी कर लेता था उसका सिलेक्शन हो जाता था. बट विद ग्रोइंग कंपटीशन, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अब आप देखिएगा कि बैंक का जो क्वेश्चन है, पीओ छोड़ो क्लर्क का भी, वो एक डिसेंट लेवल का क्वेश्चन रहता है. भले ही पोस्ट इज नॉट दैट गुड, लेकिन इतना कंपटीशन है तो वो एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा? स्क्रीनिंग तो करेगा ही किसी तरीके से. आप क्लर्क का क्वेश्चन बनाएंगे, अगर देखेंगे तो आपको रीजनिंग अच्छे लेवल का मिल जाएगा. हाँ, दोनों में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि पीओ का क्वेश्चन क्या थोड़ा मेंटल एबिलिटी ज्यादा होती है उसमें, और जब क्लर्क का मैथ्स आपको दिखेगा तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, सिंप्लीफिकेशन वाला जो पार्ट होता है वो. कहने का मतलब कि is the education level not rising? Education is rising? No? You are 1922 batch, right? Imagine when you are going to pass out in 22, there will be so many BComs with you passing out in just Patna. There will be so many BComs passing out from all the colleges across Bihar, जो सिर्फ आपके 7 बैच में पास करेंगे. और आप जहां नौकरी के लिए अप्लाई कीजिएगा या फाइट कीजिएगा, मे बी देयर आर पीपल who have passed 2 years before you, they are also fighting for the same post. And imagine 1922 में पूरे इंडिया से कितने बीकॉम पास करेंगे? समझ में आई बात? तो क्या हो रहा है? बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स. Are you not a professional? You're going to get a professional job. You will fight for a professional job. Imagine the number of professionals in just BCom. The level is rising, and every year they are just churning out so many BCom professionals, right? समझ में आई बात? तो पहले जहाँ ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज का क्या मतलब होता है? ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज उनको बोला जाता है जो नीचे लेवल पे काम करते हैं, जैसे क्लर्किंग है उससे नीचे की पोस्ट पे. वर्कर क्लास को कहा जाता है ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज.
जैसे जो वर्कर ट्रेड यूनियन के नीचे काम करते हैं उसको ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज कहा जाता है, और जो एग्जीक्यूटिव क्लास होता है उसको कहते हैं व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज. So white collar employees will excel blue collar employees future. जब white collar employees blue collar employees से ज्यादा होंगे तो आप उनको डरा धमका करके काम नहीं करा सकते, क्योंकि they are learned, they are educated. There is a difference in the way how you behave with an educated person and how you behave with an uneducated person. आप किसी शॉप में फोन खरीदने के लिए भी जाते हैं, बस छोटा सा एग्जांपल लें, उससे जो बात करने का तरीका है आपका, कि रिक्शा वाले से भी उसी तरह बात करते हैं, आप नहीं करते हैं. And same is the difference when an HR has to make up policies for educated person, professional person and technical person in the organization. अगर हम वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात करें, देखो हम सब कुछ लिखवाएंगे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो खुद लिख लेना. दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी ये बहुत अच्छा वर्ड है एंड दिस इज वेरी ट्रेंडी वर्ड टुडे फॉर मॉडर्न एचआर. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब अलग-अलग टाइप के लोग, डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आपका वर्कफोर्स बनाते हैं. जैसे people from different caste, community, region, society, community type and country, even country, right? हो सकता है कि जापान की जो कंपनी यहाँ पर है वो अपने किसी जापानीज मैनेजर को यहाँ पर भेजेगा अपनी तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए. Then if you get hired in that company, you will have to work according to him. उसकी मैनेजमेंट स्टाइल अलग होगी. So in that case, you have to deal with multicultural workforce, diverse workforce. Women, increased women participation. Workforce diversity में. पहले थी women in the workforce पे, नहीं थी ना? Women नहीं थी. आज women they are holding even the very important managerial positions. मैनेजरियल की टॉप मैनेजमेंट की पोजीशंस पर होगी. कितनी ही ऐसी कंपनीज हैं जिनकी वाइस प्रेसिडेंट वुमेन है. तो वुमेन जब होंगी तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मैनेज करने में क्या प्रॉब्लम या क्या चेंजेस आ सकता है, आप सोच के बताइए. क्या हो सकता है, तुम बताओ. तुम्हारे क्लास में सिर्फ लड़के पढ़ते हैं और तुम्हारे क्लास में लड़कियां भी पढ़ती हैं, आधी लड़कियां हैं या चलो 1/4 ही लड़कियां हैं. क्या फर्क नहीं होता है क्लास के एनवायरनमेंट में? You have to be more decent. You have to be more gender sensitized. Gender sensitization. Gender sensitization का मतलब है कि आप opposite gender के प्रति respectful रहिए. आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे वर्क प्लेस पे जो उनको awkward feel कराए. Because that is very easy. When 5 men are talking, it will make a workplace difficult for a woman to work. So when women are rising on top managerial position, they will ensure these types of things. I think the women will feel more for a woman. This is obvious. आपने ये ट्रेंड देखा है, आप बिजनेस देखेंगे, टीवी देखेंगे सिर्फ तो आपको बदलता हुआ ट्रेंड समझ में आएगा. पहले कार वगैरह के ऐड में लड़कियों को नहीं लिया जाता था. वो the role of a girl in the advertisement of a car was just restricted to be a showpiece. एक मॉडल को खड़ा कर दिया जाता था, that's it. इतना ही था ना. Can you see the trend that has changed? अब जो कार रिटर्न करना या कार एक्सचेंज करने का बहुत सारा ऐड है. I don't remember the ad exactly. आप उसमें देखेंगे there is a bunch of only women in that ad doing justice to the core concept of that ad. कि हाँ वो उन औरतों ने कार टेस्ट कर ली और उन्होंने बेच दी. There's one another ad of a car company where a woman is gifting car to her husband. क्या ये चीजें चेंज नहीं हो रही हैं? जब परसेप्शन बदला, जब बिजनेस बदल रहा है तो परसेप्शन भी बदलना पड़ेगा कि women are also involved in business of a car company. She is gifting a car to her husband and she is saying that I have checked all of the parameters.
या आप बहुत सारे एड्स में देखिएगा कि द मदर इज ड्राइविंग कार ऑन हर ओन एंड शी इज dropping her child to school. This is the kind of change in perception that the business wants to bring about in the society, because finally the workforce diversity is changing. बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है, यानी आप ऑपोजिट जेंडर के साथ हार्मनी में कैसे बिहेव करना है, बिकॉज यू नो दैट इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, परसेप्शन नीड्स टू चेंज बिफोर एनी लॉ. तो ये चीजें जहाँ माइंडसेट चेंज करने की बात है वहां तो आप काउंसलिंग से ही चेंज कर सकते हैं इसको. तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. We will increase women participation. Third, educated and uneducated. अच्छा ये बताओ, increased educational level, increased educational level से क्या चेंज आएगा? आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप बस एक just imagine, you must have studied in business organization the autocratic style of leadership. Yes. जैसे हिटलर को बोला जा सकता है, उसका एक एग्जांपल क्या होता है ऑटोक्रेटिक में? मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, फॉलो करना है. You do not have any say when there is any command. There is a very clear cut line of command. The message will flow vertically, top to bottom, and you do not have any say. That is not participating. You're not asked for any suggestion or recommendations. Whatever is commanded to you, you have to obey. That's the simple rule. लेकिन ये बोला जाता है कि there is no one kind of leadership. मतलब तुम बताओ, तुमको सोच करके देखो, अगर तुमको 10 रिक्शा वालों को कमांड करना है, ठीक है, तुम्हारे घर में तुमको काम कराना है, दिवाली की सफाई करानी है, एंड देन देयर आर 10 पीपल जो वर्कर क्लास के लोग हैं जो आए हैं आपके घर में सफाई करने के लिए, और आपके घर में 10 बच्चे आए हैं 12th क्लास के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए. आप दोनों के साथ एक ही तरह से बिहेव करेंगे या एक ही तरीके से आप जब बात करेंगे तो क्या दोनों को समझ में आएगा? So there is no one kind of leadership. This could be an HR question. ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप किस तरीके के स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं. These questions are always asked. इंटरव्यू देंगे आप तो आप पूछेंगे कि भाई मैनेजमेंट आप इतना पढ़ के आए, स्टाइल ऑफ लीडरशिप बताइए, और उसके बाद वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आप सीखे क्या लीडरशिप पढ़ लिए. तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके के लीडरशिप में बिलीव करते हैं. Then you will say, so there is no one kind of leadership. It depends upon situation and it depends upon the kind of people we are going to lead. जैसे जो untrained, unskilled और labor class के लोग होते हैं, उनके साथ to an extent, autocratic style of leadership is fit. क्योंकि वो unskilled है, untrained है, उनको कुछ नहीं आता है. लेकिन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, जब आपके क्लास में जब आप बराबर वाले काम कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि बाकी लोगों को पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करने दिया जाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं. पार्टिसिपेटिव हम आकर के अगर ये बोले कि प्रिया मुझे तुमसे एक सजेशन चाहिए, इस काम को कैसे किया जाए, तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, हाउ यू थिंक दिस वर्क कैन बी डन. इससे दो चीजें होंगी. अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इससे ये होगा कि I might get some idea which is not there in my mind. मेरे दिमाग में नहीं है वो, तो कुछ न्यू हो सकता है, ये हमको बताते जो हम नहीं सोच सकते. और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इट्स अ कोलैटरल गुडनेस पार्टिसिपेटिव. और इससे अगर ये पूछो तो इसको एज एन एम्प्लॉय, अगर हम एम्प्लॉय हैं और ये एम्प्लॉय है, तो एज एन एम्प्लॉय हो सकता है she'll provide me with an idea which I have never thought of, and thinking about her,
she will feel more valued. तो अच्छा फील हो. कोई आपसे सजेशन लेने आता है तो आपको अच्छा फील होता है ना कि मुझे वैल्यू किया गया. लेकिन हम कब प्रिया से लेने जाएंगे सजेशन? क्या ये नीचे की वर्कर होगी तब हम लेने जाएंगे? क्योंकि हमको पता है कि इसको कुछ नहीं आता है, वो तो अनस्किल्ड है. हम तब पूछने जाएंगे जब ये एजुकेटेड बैकग्राउंड है इसका, जब ये इसमें सोचने समझने की क्षमता है, जब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैपेसिटी है. तो जैसे जैसे एजुकेशनल लेवल बढ़ेगा, क्या लोग सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन आप बंद करके फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं करेंगे. दे विल रिफ्यूज, दे विल रिवोल्ट. मैस्लो की थ्योरी पढ़ाए थे ना, सेल्फ एस्टीम. दे विल सीक मोर एंड मोर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. वो इन्वॉल्वमेंट चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में ताकि उनका सेल्फ फुलफिलमेंट हो, उनको अच्छा फील हो. ओके, these could be interview questions. आप ये सब पॉइंट्स रखिए और जब अपने लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस तैयार कीजिए तो ऐसे पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड कीजिए. लेकिन इंक्लूड करने का मतलब ये है कि जब वो आपको इस पे ग्रिल करना शुरू करें तो आप उस पर जस्टिस कर सकें, न्याय कर सकें. वरना फिर वो बोलेंगे कहीं से याद बात करके आते हैं, ये बोलेंगे ना. And they are interviewers, they are experienced people, they can make it out from your face how much learned you are and not. ठीक? Educated and uneducated, why? क्योंकि उनको डील करने का तरीका अलग अलग होता है. Right? Educated और uneducated people. लीडरशिप का एक इम्पोर्टेंस देखो. जब हम कह रहे हैं कि अलग कास्ट के, अलग कम्युनिटी के, अलग रीजन के, अलग कंट्री के लोग आएंगे. मान लो तुम एक लीडर हो, क्या आंसर करो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू आल्सो पार्टिसिपेट. इस क्वेश्चन पे पार्टिसिपेट कीजिए. आप ये बताइए, से वन ऑफ यू इज अ लीडर or a manager of high post in an organization जहां सारे कास्ट के लोग काम कर रहे हैं. There is a bunch of people who are from SC/ST community. Okay, there are people from different religion. Christians हैं, Muslims हैं, Sikh हैं और Hindu हैं. There are people from different countries. आपके स्टाइल ऑफ लीडरशिप में क्या डिफरेंस आना चाहिए तब उससे जब सिर्फ इंडियंस और सिर्फ बिहार के लोग मान लो काम करें. तुम आज यहाँ पे निकले और फ्रेशर में तुमको काम मिल गया, धीरे धीरे तुम राइज किए. अब बिहार में तुम 4 साल लोगों को मैनेज किए और कंपनी चाहती है कि तुम दिल्ली का ऑफिस संभालो. वहां तो सारे टाइप के लोग मिलेंगे. अब बताओ क्या चेंज होना चाहिए? कम्युनिकेशन. एक्सप्लेन. कम्युनिकेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे ही अलग रीजन अलग प्लेस पे जाएगी तो हमें ये लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे भाषा में क्या बात करनी चाहिए. हर कंपनी में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं तो एक इंग्लिश तो कुछ लोग ठीक से जान पाएंगे, इसका कुछ तो अपना रीजनल लैंग्वेज ही जानेंगे. But you being a leader, you cannot know German, you cannot know Spanish, you cannot know Tamil, you cannot know Telugu. लेकिन वहाँ के लोग तो काम करते हैं आईटी कंपनीज में, करते हैं कि नहीं? केरला के इतने लोग काम करते हैं आईटी कंपनीज में. They speak Malayalam. Malayalam is such a tough language, you can't even learn. लेकिन वहाँ तो यहाँ के बिहार के भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और लीड करते हैं मैनेजर्स who are at good post. मैम वर्किंग स्टाइल. हाँ आशुतोष कुछ बोलो, बाकी लोग सोचो. मैम वर्किंग स्टाइल. वर्किंग स्टाइल एज इन व्हाट? इलैबोरेट करके बताइए, समझ में क्या आया? मैम जैसे बिहार का होता है कि वर्किंग स्टाइल में भी कहीं लिबरल रहता है, हम यहाँ पे कि अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली जाते हैं अदर स्टेट में, वहाँ का वर्किंग स्टाइल चेंज रहता है यहाँ के हिसाब से. तो हमें वहाँ के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है कि मुझे वहाँ पे काम कैसे करना है, कैसे किस चीज को हैंडल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वो सारी बात. तुम फिर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गए ना, नॉट जस्ट बिहार. अच्छा चलो बिहार की ही बात करो, थोड़ा नैरो से ऊपर चलो. there are people working from SC/ST community, a lot of people.
and you're not from that community. Well, Behavior. Very good. This is what I am seeking for. You have to be culturally sensitive. अगर मैं as a teacher तुम सब लोगों को पढ़ा रही हूँ और तुम सबको इक्वली पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम तुम सबके बिलीफ में ही बिलीव करते हैं. I must be having my own belief in something. मान लो क्लास में 5 कम्युनिटी के 5 कास्ट के लोग हैं. कल्चरली सेंसिटिव लीडरशिप का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्टार मार्क करके लिख लो कि करंट डिमांड क्या है. दैट व्हेन यू आर वर्किंग यू शुड बी कल्चरली सेंसिटिव. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की उपज है ये. दिस मीन्स regardless of which belief you are into, आप किस चीज में बिलीव करते हैं. हो सकता है कि मेरी सोच बहुत कट्टर हो किसी चीज के बारे में, लेकिन when I am working with my fellow mates, when I am working with my peers, I should not make you feel degraded about it, about your people culturally sensitive. जैसे कल्चरली सेंसिटिव बहुत बड़ा टॉपिक है. खाने को लेके भी तुम ऑफिस में मीट मछली लेके आते हो. See, I'm telling you, इसलिए हम बोले तुम अभी सारी लाने लगे ना. देखो टॉलरेंस ये बात हम तुमको समझा रहे. हो सकता है कि तुम जब कल्चर की वजह से बहुत बहुत हंगामा हुआ है कंपनीज में, हो सकता है there is a Muslim person, he is not, I mean, not कि अब नवरात्रि में ये सब तो हम लोग का होता है, वो खाते हैं, वो ऑफिस लेके आए. You have to be respectful of that. There's a person belonging to China and he is eating some weird kind of thing in organization, but you have to work, you have to believe in that. उनकी अपनी पूजा होती है, उनका अपना कल्चर होता है, उनका अपना डेज ऑफ सेलिब्रेशन होता है ना. जब इंटरनेशनल मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कल्चर कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस करने का. जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे अमेरिका, अमेरिकन कल्चर इज एन ओपन कल्चर. वहाँ पे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की वाइफ दोनों आते हैं बाहर के गेस्ट को स्वागत करने के लिए. आते हैं कि नहीं? आते हैं ना दोनों. यहाँ पे भी प्रणब मुखर्जी की वाइफ कई फॉरेन डेलीगेट्स को रिस्पेक्ट करना, रिसीव करना, डिनर करना साथ में, ये सब है. सऊदी अरेबिया में देखियो किसी वुमेन को वहीं पे खत्म कर देगा. आप उनसे पूछ भी नहीं सकते हाउ इज योर वाइफ. समझ नहीं ना. दिस इज द चेंज इन कल्चर. सऊदी अरेबिया से हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है, बहुत बड़ा. हमारे बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं. दुबई में तो इतने सारे इंडियंस हैं एंड उसके अलावा भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी है हमारी कंट्री में. दुबई इज आल्सो डूइंग सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कश्मीर नाउ. कभी देखिए हो वुमेन को वहाँ पर? नो. महंगा वाइन का बॉटल ये सब गिफ्ट करना यूरोपियन कंट्रीज में इज फाइन. इंटरनेशनल बिजनेस का एक पार्ट है. UAE, क्योंकि that is Islam dominated, you cannot take the name of all these things. ये इस्लाम में forbidden. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे यहाँ कोई पीता नहीं, बट आप जब वहां जाएंगे you have to be culturally sensitive. ठीक है. जापान इतना बड़ा मनी इंडस्ट्री का हब और इतने सारे मैनेजमेंट फिलॉसफी वहां से मिले हम लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जो कि हमने इम्प्लीमेंट, जो कि जिस अमेरिका ने सीखा और बहुत बाद में इंडिया ने सीखा. जापान के काम करने का तरीका क्या है? जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल, दे आर वेरी वेरी एनवायरमेंट कॉन्शियस. आप ये देखेंगे कि वो लोग कल्चरली भी इतना ही फॉलो करते हैं जितना बिजनेस और ट्रेड पे ध्यान देते हैं. आपने देखा है कि नहीं? Majority of people follow Buddhism there. तो जब
कोई फॉरेन डेलीगेट जाते हैं तो वहाँ के टेम्पल्स को घूमना, वहाँ की चीजों को देखना, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्टाइल। तो आप ये समझिए कि कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपसे अगर कोई बोले कि लीडरशिप में तुम क्या सोचते हो, तो तुम ये सब जो बोलोगे, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, वो ठीक है, पर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी चेंज होने की वजह से लीडरशिप में क्या चेंज आया? That you have to be culturally tolerant. You have to be culturally sensitive. Understood? अब देखो टाइम है 45। हम 4 कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, उसको अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। इतना सब कुछ आपने समझा कि एचआर ऐसे चेंज हो रहा है, तो चेंज होने के बाद तो कैसे कोप अप किया जाएगा? जब वी स्टडी एसएचआरएम, आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, वर्कशॉप में आप सिर्फ नाम जानिए। When we talk of SHRM, यानी Strategic Human Resource Management, तो Strategic Human Resource Management में कुछ मेथड्स हैं सजेस्ट किए गए जिससे हम ह्यूमन रिसोर्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। Strategic Human Resource Management मतलब what is the difference between HRM and SHRM? Strategic human resource management is a long-term SHRM policy and procedures which are done in alignment to the corporate strategy of the organization. यानी अगर organization ने ये plan किया है कि हम efficiency बढ़ाएंगे अपनी, तो that efficiency has to be communicated down the organization to each and every member की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अलाइनमेंट में तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। अंडरस्टूड? देयर आर 4 मेन मेथड्स व्हिच आर सजेस्टेड। हम एक्सप्लेन कर देंगे, बट ये आपको बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बट यू शुड नो दीस आर वेरी कॉमन वर्ड्स टुडे। द फर्स्ट वन इज एम्पावरमेंट, सेकंड वन इज क्वालिटी सर्कल्स, थर्ड वन इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये आपको पढ़ना भी होगा शायद, कहीं नाम सुन लिया। सुने? TQM, quality circles, इसको हम कॉमनली TQM के नाम से जानते हैं। Then this is business process. ठीक है, देखो एम्पावरमेंट, क्वालिटी सर्कल्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये लिख लो। दीज आर द 4 मेथड्स जो एसएचआरएम यूज करता है अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को और बेटर एफिशिएंसी से काम कराने के लिए। ये सब चीजें हम तुमको एक एग्जांपल देके समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, किसी का भी एक सर्विस सेक्टर का एग्जांपल लेंगे और फिर तुम लोग खुद ऐड करते जाना उसके साथ साथ कि क्या होना चाहिए, कैसे स्टाफ को काम करना चाहिए ताकि वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर करे। ठीक है? I will give you the details and after that we will start recruitment and selection.